Namaste, hello, and welcome to the new course that we are finally starting with. I know many of you have asked me earlier about it, but finally we are here with it. And my personal favorite, this subject is something I totally, absolutely love, and I have taken n number of, you would say, batches on this particular course. So here I'm talking about the comprehensive course on modern Indian history for UPSC CSE 2025 and 2026. And of course, that would continue to cater to the needs of the upcoming exams as well. But here it's not just about the course, it is also about something that, let's say, you are not taking this course from me, or let's say from anybody else from that matter, but you need to know how do you prepare this subject, right? So more important is how do you prepare this subject. Now you take somebody's assistance or you do not take somebody's assistance, that is a different story. So here we are trying to see that how do we get into this particular subject, how do we deal with the details of it. And here I'm going, of course I am taking it from the perspective of the course introduction, but this is absolutely going to be the similar pattern when you prepare by yourself. One of the major reason that I decided to take up this course, although I've been doing it for past 8 years, but major reason is that many of my students from different courses who have enrolled for this particular course in some other institute, basically the GS Foundation course, they also told me that many of the faculties are taking the topic from इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, जो आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे रखा है मैंने उसको. सो 2 स्लाइड्स आर ऑलरेडी गॉन फॉर दैट मैटर, ठीक है. सो उसमें क्या होता है कि ऑफकोर्स दे कवर एवरीथिंग, दे कवर दीज टॉपिक्स ऑल्सो, बट दैट इज डन इन haphazard manner. The chronology is not maintained, which इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट जो कि पहली बार पढ़ रहा है, मान लो, ठीक है, या फिर उसको फॉर सम XYZ रीज़न डर लग रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द chronology. So that is something that I've taken care, which I anyways usually do in all my courses, but specific to the needs of those students who find the difficulty in understanding the chronology and everything. And I also have a solution for you for the chronology part, which I'll discuss in the end. But let us quickly understand, before we get into the details of this particular course, that how do we prepare this subject which is titled as modern Indian history from the perspective of weightage. Agar hum dekhein, because I am primarily taking it for UPSC civil services examination aspirants, but that will also cater to the needs of other government exams and other state PCs, etc., which I'll tell you in the end again. So what is going to happen here is, subject matter is to be understood with respect to the weightage it has in the different sets of examination. So prelims में I am not giving you the exact number of question कि 12 पूछते हैं कि 14 पूछते हैं कि 8 पूछते हैं, for the very simple reason that every year they change that marking scheme and the number of the weightage and everything. सो प्रीलिम्स में क्या होता है कि इट रेंजेस, कभी एंशियंट से ज़्यादा, कभी मिडिएवल से ज़्यादा, कभी कल्चर पोर्शन से ज़्यादा, कभी मॉडर्न से ज़्यादा. सो दैट सेट कीप्स ऑन शिफ्टिंग. एक एवरेज हम लेके चले तो हम 10 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट देयर इज़ नो थंब रूल अबाउट इट, ओके. बट इट स्टिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्टली बिकॉज विदाउट इट देयर इज़ नो बेस ऑफ हिस्ट्री. सेकेंडली कि आपका जो मेंस पेपर है, जो अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी, और अदर आई prefer to show you right here. So if you see the main syllabus, इसमें एक major portion form करता है, and accordingly the weightage also goes, ठीक है. But the thing is that in the syllabus only these two statements are given, ठीक है, बहुत briefly define है. Modern Indian history from about middle of 18th century. तो सबसे पहले तो आपको मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में यही समझाऊंगी कि ऑल्दो हिस्ट्री के जितने भी बच्चों ने मेरे साथ करा है NCRTs में भी, दे नो दैट आई हैव टॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि अगर आपको ऐसे करके क्वेश्चन में लिख रहा है मिड 18th सेंचुरी, ठीक है, या सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, या फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century, anything can be there. और आप मेंस के क्वेश्चन जब देखोगे, when you will analyze your mains question, you will notice that such statements are repeated again in the question. They do not give you the year in the question, they give you things like this. तो first thing you need to know is to decode it, of course, right? So वो हम समझेंगे.
एंड देन अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज एंड फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है. But as I said, the syllabus is very, very short. So here I have tried to decode it for you. Right? This is the detailing, and still a lot more details would be added as we go ahead. Because अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी तो people would get very bored. राइट. सो आई अंडरस्टैंड कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो हम इस थीम को ना जल्दी से एक बार समझेंगे. विल जस्ट क्विकली ब्राउज थ्रू इट. आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन. द PDF is available for you. You will quickly go through it. More things about the course and everything would be shared with you in the coming time. So let us quickly understand. जब हमको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कहानी समझनी है, when we have to understand the story of modern Indian history, we actually go little back into the medieval portion. ठीक है. क्योंकि medieval और modern के बीच का जो transition है, right, one day cannot lead to the transition, है ना. It has to be a period, it has to be some years into this. So that years which is involved in this entire process, उसको हम पहले समझेंगे. So firstly तो हमको ये समझना है. अच्छा, एक चीज़ तो आप सबको पता है दैट वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है. हम कॉलोनियल रूल के अंडर में थे एंड देन वी गॉट इंडिपेंडेंट. तो कौन से डे को हम इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं आपको पता है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं आपको पता है. ठीक है. कौन से ईयर में हमें आज़ादी मिली थी आपको पता है. ठीक है. दैट्स द बेसिक. बट यू नो कि ब्रिटिश जब आए, व्हेन द ब्रिटिश केम, बिफोर दैट ऑल्सो इंडिया वॉज देयर. एंशियंट मिडिएवल चल ही रहा है ना हमारा. तो what was the condition in India? ठीक है. So on the eve of British conquest, which means when the British conquested India, what was the situation in India? ठीक है. So 18th century India में, यानी जो 1700s वाला टाइम है, ईयर है, पूरी सेंचुरी है, उसमें क्या कंडीशन था? What was the condition? That is what we need to understand here. So as I said, we go back to the Mughals. ठीक है. I'll give you a briefing of the Mughals also. उसके भी सब पार्ट्स हैं कि लेटर मुगल्स कौन थे, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द मुगल, व्हाई द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, बिकॉज ऑफ विच द ब्रिटिश को टेक ओवर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. सो दैट वी विल अंडरस्टैंड. देन आपने छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स के नाम सुने होंगे. बंगाल का, अवध का, हैदराबाद का, मैसूर का, पंजाब में. ठीक है. एटसेट्रा. सो नाउ द पॉइंट इज कि ये सारे स्टेट्स कैसे आए थे, कहाँ से इमर्ज हुए थे. बिकॉज अगर सिर्फ मुगल्स थे और फिर ब्रिटिश आ गए, सो क्या इनके बीच में कोई नहीं था? द क्वेश्चन वुड ऑल्सो बी दैट बिटवीन द मुगल्स एंड द ब्रिटिश वॉज देयर नथिंग. इट जस्ट गॉट ट्रांजिशन लाइक दैट कि मुगल्स आए और हटे और ब्रिटिश आ गए, ऐसा तो नहीं था. सो देयर वर मेनी प्लेयर्स इन बिटवीन. उसमें से एक मेजर प्लेयर जिसको हम एक प्रॉपर सेगमेंट की तरह समझते हैं, दैट इज़ द रीजनल स्टेट्स. सो दे आर ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरी. वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्टेट्स, हु वर द इंपॉर्टेंट पीपल हियर, वॉट वॉज हैपनिंग हियर, वो सब हम समझेंगे. एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द 18th century इंडिया, दैट वॉट वॉज द कंडीशन इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी व्हेन द ब्रिटिश केम. Because after that they changed a lot of things. So to understand about that comparison कि उन्होंने जो change करा, firstly you need to know the prior condition. पहले क्या था वो जानोगे तभी तो आगे compare करोगे. So I think that's clear. Then we will understand कि Europeans जो इंडिया में आए, the advent of Europeans. Now we know that the English or the British survived and then they ruled for almost 200 years. But the point is कि were the British only people who came? No, there were other players also. So we will read about them. ठीक है. We'll see what kind of questions come, and this is a very very important topic. Prelims में तो इससे हर साल question आता है. ठीक है. अब क्या हुआ? We know कि British became superior. They survived, right? उन्होंने बाकी सबको हटाया और वो ही आगे exist करते गए. So what was the reason or how the British supremacy started to happen? So the rise of British supremacy, उसमें हमें कार्नाटिक वॉर, प्लासी, आपने बैटल ऑफ प्लासी सुना होगा, है ना, बैटल ऑफ बक्सर सुना होगा, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे. दैट आफ्टर इमर्जिंग विक्टोरियस हाउ द ब्रिटिश बिकेम सुप्रीम. ठीक है. नाउ दे बिकेम सुप्रीम. अब क्या होगा? दे विल स्टार्ट टू एक्सपैंड. कंट्री के एक 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 हिस्से को अपने कंट्रोल में लेना शुरू करेंगे.
देर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट वन पावर विल कम एंड सडनली ऐसे चुटकी बजाते दे विल हैव द कंट्रोल ओवर द एंटायर कंट्री. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो दे विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, है ना. मैसूर पे कब्जा करेंगे, मराठास पे करेंगे, इधर तो बंगाल बिहार इस पे कर ही लिया, ठीक है. फिर आसपास के रीजन्स पे भी करेंगे, नेपाल बर्मा अफगानिस्तान पे करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, अब जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन है उधर के रीजन्स पे करेंगे ना, सिंध पंजाब अवध एक्सेट्रा. तो बहुत सारे रीजन्स पे करेंगे विद इन इंडिया एंड नियर बाई. ओके. सो हाउ दे एक्सपैंडेड, हाउ दे कंसोलिडेटेड देयर पावर, अपने पावर को उन्होंने कैसे ऐसे कंट्रोल करा सब कुछ, वो हम समझेंगे. एंड वहाँ पे डेफिनेटली द रोल ऑफ गवर्नर जनरल्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट विच विल डू. क्यों? क्योंकि ये पर्सनालिटी में भी आता है. आई होप आपको समझ आ रहा हो, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा हो. ये देखो सिलेबस में भी मेंशन है कि आपको डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट इवेंट्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं. व्हेन वी डिस्कस इवेंट्स वी डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इश्यूज. अभी आपको आई गिव एग्जांपल्स ऑफ इश्यूज ऑल्सो. सो पर्सनालिटीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. समझ रहे हो कि हम सिलेबस को भी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो कहानी में हम कहाँ तक पहुंचे? वेयर डिड वी रीच इन द स्टोरी? दैट द ब्रिटिश हैज़ कम, दे हैव एक्सपैंडेड, दे हैव स्टार्टेड टू एक्सपैंड, दे आर कंसोलिडेटिंग. अब कंसोलिडेट कर लिया, पूरा कंट्रोल कर लिया, ऑलमोस्ट होल कंट्री, ऑलमोस्ट, ठीक है. वाई एम आई सेइंग ऑलमोस्ट? दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास. अब कंट्रोल कर लिया, सो दे विल स्टार्ट टू हैव देयर ओन पॉलिसीज, तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे. तो कैसे करेंगे? दे स्टार्टेड टू हैव देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, सिविल सर्विसेज में चेंजेस, आर्मी, पुलिस, जुड, मतलब इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो इन्होंने खुद इंट्रोड्यूस करी हैं. तो क्या था वो हम समझेंगे डिटेल में. जुडिशरी में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या हुआ, व्हाट वाज द इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट दे केम अप विद, लाइक लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज. आपने नाम सुना होगा परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, रियोदवारी, महलवारी. देन इंडस्ट्रीज़ का क्या करा, एग्रीकल्चर में क्या करा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. So a lot of things related to economy. And now if they come with certain policies, there will be certain impact of it also. तो ये भी हमको करना है. Now when we do about these administrative setup, we do it into two halves. 1857 के पहले और फिर उसके बाद. Because revolt of 1857 came as a turning point. So 1858 onwards, things changed little bit. So what changed, that we'll see. So we'll do this into two parts. Okay? Now, when all of these things they were doing, they were also coming up with certain changes or certain developments, which again we do on the basis of time frames into three parts. तो वो जब जब आएगा हम chronology में उसको वैसे पढ़ेंगे, ठीक है. अभी तो I'm just giving you that story का rough timeline to understand. But ऐसा नहीं है, this is not a strict timeline कि एक हुआ तभी दूसरा हुआ. Things were going simultaneously, overlapping चीज़ें चल रही थी. So exact time frame क्या है वो तो lecture में करेंगे, ठीक है. So they were taking certain steps which later resulted in और यू कैन से कि हमारा जो आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, सो दैट लेटर रिजल्टेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टन पॉइंटर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली. तो वो चेंजेस क्या, जो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, आप एक्ट्स पढ़ते हो ना, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हो, बाकी चार्टर एक्ट्स पढ़ते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते हो पॉलिटी में. फर्स्ट चैप्टर लक्ष्मीकांत में यही होता है, ठीक है. बस वही चीज़ है, दैट विल डू इन डिफरेंट पार्ट्स. ओके, नाउ द स्टोरी. अब सोचो, ब्रिटिश रूल उन्होंने खूब सारा काम करना शुरू किया. दे स्टार्टेड टू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, कमिंग अप विद पॉलिसीज़ और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया. वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या करना शुरू कर दिया. अभी तो मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ. सो अब इतना कुछ जो करना शुरू कर दिया, पीपल विल नॉट सिट साइलेंटली, पीपल विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड, राइट. सो वॉट वॉज इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रूल, वॉट वर दोज पॉपुलर अपराइजिंग्स 1857 के पहले भी. सिविल पीपल, लाइक जो नॉर्मल पीपल हैं, पेजेंट्स, ट्राइबल्स एट्सेट्रा. देन द मेजर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको भी करेंगे. एंड देन पोस्ट 1857 ऑल्सो थिंग्स कंटिन्यूड. तो अगेन ईयर वी आर डिवाइडिंग, यहाँ तक भी कर रहे हैं एंड आफ्टर 1900s भी हम चीज़ें समझेंगे आगे, ठीक है. देन एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी कि बहुत सारे रिफॉर्मर, जैसे आपने सुना होगा ना, सती प्रथा हटा दिया, लड़कियों के पढ़ाने की बात कर दी. अब ये सब पहले इंडिया में हो नहीं रहा था. So there were certain reformers also which came, ठीक है, who came,
एंड दे केम विथ सर्टन मूवमेंट्स, उनके जो भी सोशियो रिलीजियस, तो सोशल इशूज़ को भी और रिलीजियस एंगल से भी, ठीक है, इसको भी हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं. सो दोज रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो वी अंडरस्टैंड. एंड देन आई टोल्ड यू कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हम आफ्टर 58 भी पढ़ेंगे, 1857 के बाद, ठीक है. सो 1858 से प्रॉपर इंडिपेंडेंस तक भी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है. अब यहाँ तक तो समझ आता है, बट जो मेन हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन में डू यू रिमेंबर वी यूज टू हैव दोज चार्ट्स जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज़ हुआ करते थे, एंड वी यू नो स्कूल में हमें पूछा जाता था उसके बारे में. सो यू वर सपोज टू नो अबाउट दोज फ्रीडम फाइटर्स. सो उनका रोल कहाँ आता है, एंड देयर वर मेनी पीपल, ठीक है, जिनको स्टोरी हिस्ट्री में कोई याद नहीं रखता है, बट देयर रोल वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दोज थिंग्स ऑल्सो विल अंडरस्टैंड. सो नाउ द स्टोरी शिफ्ट्स फ्रॉम द एंटायर ब्रिटिश वाला पार्ट टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. यहाँ पे भी ब्रिटिश इन्वॉल्व है, बट अब लोग जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें एक नया सेक्शन आ रहा है, ठीक है, नेशनलिस्ट का. तो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बन रहे हैं, इंडिविजुअली भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. सो वी स्टार्ट विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट. द मेजर पोर्शन इज़ 1885 वाला टाइम, बिकॉज वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था. बट बिफोर दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड नेशनलिज्म क्यों राइज किया, कांग्रेस के पहले कौन से एसोसिएशन बने, इस सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना. कांग्रेस बन गया, फिर कांग्रेस का इनिशियल फेज़ क्या था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फिर कांग्रेस के इनिशियल फेज़ को समझेंगे, मॉडरेट्स को, फिर बाद में हम मिलिटेंट नेशनलिज्म पे आएंगे. फेजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म भी आ रहा है, एक्सट्रीमिस्ट भी आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है, वर्ल्ड में भी चीज़ें चल रही हैं. तो पैरेलली ऑल्सो व्हेन यू विल सी योर पीवाई की इज ऑल्सो मेंस एग्जाम का, तो यू विल सी कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड में भी जो चल रहा है, सो हाउ डू यू एसोसिएट इट विथ इंडियन सिचुएशन, ठीक है. देन अ मेजर पर्सनैलिटी, मोहनदास करमचंद गांधी. सो हाउ डिड ही अराइव, उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, उनका इमर्जेंस, उनकी आइडियोलॉजी एट्सेट्रा वी विल कवर. एंड देन द होल स्वराज स्ट्रगल स्टार्ट्स, ठीक है. उसमें बहुत से मूवमेंट्स हम समझते हैं, आपने नाम सुना होगा, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, नेशनलिस्ट मूवमेंट का अदर फेज़ हो गया, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का अदर फेज़ हो गया, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक सुना होगा ना, ब्लैक प्ले कार्ड पे लिखा रहता था, पूर्ण स्वराज क्या था, वो सब हम समझेंगे. फिर प्रॉपर स्ट्रगल फॉर स्वराज आगे के फेजेस में 29 से 47, ये पूरी लिखी हुई है, आई एम नॉट रीडिंग इट, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड हियर एंड स्टिल इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, लाइक उसमें बहुत से और चीज़ें हमको डिटेल में करनी है, ठीक है. एंड दैट विल कल्मिनेट इन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस. फाइन. कुछ और मिसलेनियस चीज़ें जो हमें करनी होती हैं, लाइक प्रिंसली स्टेट्स का स्ट्रगल हो गया, देन ट्राइबल पेजेंट वर्किंग क्लास मूवमेंट इन द सेकेंड हाफ एज वेल, इंडियन प्रेस के बारे में, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एट्सेट्रा, एंड देन एजुकेशन का डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फाइन. सो ऐसे करके हम अपने सिलेबस को प्रॉपरली ख़त्म करेंगे. सो आई होप द क्रोनोलॉजी नाउ विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू. Very quickly moving to the details of the course. The course duration I have roughly kept it for 1.5 or 2 months, ठीक है, इतना लग ही जाएगा, because you know that I am doing everything independently, सिंगल मैं काम कर रही हूँ, कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, तो सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं, तो इतना टाइम लगेगा, बिकॉज हम प्री एंड मेंस दोनों के लिए कर रहे हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम January 2, ठीक है. टेंटेटिव डेट जो मैंने एंड का रखा है दैट इज़ February 21, बट इफ़ नीडेड आई माइट टेक अनदर 6 to 7 days, बट February तक में तो पूरा ये ख़त्म हो ही जाएगा. मैं ट्राई करूँगी और जितना पहले हो जाए, बट इन द कोर्स ऑफ रशिंग आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी दैट यू नो ऑलरेडी, राइट. वेरी क्विकली, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द कोर्स. प्रीलिम मेंस कंटेंट तो है ही, प्राइमरीली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, also relevant for other state PSC, other government exams, CUET, because some students from who are going to appear for this also reached out to me, क्योंकि बहुत सारा overlapping syllabus है, ठीक है. क्लास नोट्स लेक्चर्स के साथ आपको मिलेंगे ही. द USP इज़ द शॉर्ट, क्रिस्प एंड सेल्फ मेड नोट्स. आपको दिख रहा होगा मैंने इंट्रोडक्शन टेम्पलेट भी कॉपी पेस्ट नहीं करा है कहीं से, बिकॉज यही सब पढ़ाते हैं, यही सबको पढ़ाना ही है, दिस इज़ द कंटेंट, ठीक है. बट दैट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर बाई सेल्फ, तो आप समझ ही रहे हो नोट्स आपको. और अगर आपने मुझसे कोई भी क्लासेस लिया, आपको पता है PYQs एनालिसिस प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के करेंगे, कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स दोनों पे ध्यान दिया जाएगा, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स व्हेनेवर नीडेड. ओके, दिस कोर्स इज मेड फॉर
एस्पिरेंट्स ऑफ 2025 डेफिनेटली, एंड उसके बाद के भी 26 हो गए या अगले 2 3 4 साल के, तो आप आराम से सेफली कर सकते हो। वैसे भी हिस्ट्री बदलने नहीं वाली है, 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो नहीं बदलेगा। हाँ, सिलेबस और पैटर्न ज़रूर बदल सकता है, बट कोर तो थीम तब भी वही रहेगी। तो हिस्ट्री के लिए तो वो टेंशन लेना भी नहीं है, राइट। एनी वन हु इज़ अ कम्प्लीट बिगनर, अच्छा इसमें ऑफकोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आई एम तो टीचिंग यू द स्टैटिक, बट अगर इन द कोर्स ड्यूरेशन कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑल्सो आता है रिलेटेड टू एनी हिस्टोरिकल इवेंट और पर्सनैलिटी, विल कवर दैट इन द एंड फॉर प्रीलिम्स, ओके। देन anyone who is a complete beginner, so somebody let's say who has not covered ancient medieval history, so your question would be, ma'am, I have not done, I don't know the chronology, so is it advisable for me to take this course? I would say yes, because I will teach it from the very beginning, एकदम बेसिक से मैं कराने वाली हूँ, तभी वो हम टाइम उतना कवर कर रहे हैं। बट आई ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन फॉर यू, सो अभी मैं जस्ट आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगी, सो दैट जो टाइम है, like I am sharing this video with you on 29th of December, the course starts 2nd of January, so आपके पास समय है to cover something that I'll just tell you, ठीक है। तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी, but anybody who is a complete beginner is more than welcome, because you will be absolutely comfortable, and anyone who is not appearing for any exam but still interested in modern Indian history are also welcome, क्योंकि ये कोर्स पढ़ाया ज़रूर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, बट इस तरीके से जाएगा दैट यू वुड ऑल्सो इन्जॉय इट एज अ स्टोरी। नाउ अब इस कोर्स की यूएसपी क्या है, ठीक है, स्पेशल पॉइंटर्स क्या हैं। फर्स्टली सेल्फ प्रिपेयर्ड हैंडमेड नोट्स, आपको दिख ही रहा, आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। आई नो दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, इज स्टिल इज़ वेरी इफेक्टिव। वाई? बिकॉज फर्स्टली इट ट्रेन्स योर माइंड, अगर मैंने ये सारी चीज़ें खुद से लिखी हैं, सो आई नो दैट आई हैव रिटन दैम, ठीक है। देयर इज़ नो point that it is just a copy paste and I'll forget it, no, ठीक है। So similarly that mind, your brain will work like that. Secondly, it is also effective because UPSC CSE is a pen paper based exam, so no matter how much technology you put into this, how much printout you take और digitally आप पढ़ो, लिखना है वहाँ जाके एग्ज़ाम में, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी वहीं पेन पेपर पर ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो वो ट्रेनिंग हमको माइंड को शुरू से देनी है, सो आई फेवर दैट, ठीक है। मेरी खुद की हिस्ट्री की बैकग्राउंड, सो आई एम अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, आई हैव बीन टीचिंग द सब्जेक्ट फॉर मोर देन 8 years, अन अकेडमी में पढ़ाया, यूट्यूब पे पढ़ाया, खुद से अपने कोर्सेज लिए हैं। सो अब ये अंजन कला शायद पे ये फर्स्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स होने जा रहा है डेफिनेटली, बट ओवरऑल बहुत साल से पढ़ा रही हूँ, खुद भी पढ़ा है सब्जेक्ट को, सो कमांड है, और आई होप यू विल ऑल्सो इन्जॉय। एक्सेप्शनल कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्वालिटी, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम पर्सनली डूइंग एवरीथिंग। नोट्स किताबें इधर उधर पढ़ के बनाने से लेकर के आपको डिलीवर करने तक एवरीथिंग इज़ जस्ट माई वर्क, ठीक है। तो आई विल इंश्योर दैट यू डोंट फॉरगेट द स्टोरी। आई होप अभी भी जो आपने पढ़ा, आपको अगर ब्रेन में एक वायरिंग हो गई होगी, सो द स्टोरी यू वुड हैव इन्जॉयड। फैक्ट्स पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें नो बडी कैन हेल्प, but I'll try to help even in that as much as I can, okay। The course feature also include 1 year validity for the course, आप नोट्स ऑफलाइन डाउनलोड करके PDF आराम से एक्सेस कर सकते हो, वीडियो को भी आप ऐप में ऑफलाइन डाउनलोड करके यू कैन वॉच इट, ठीक है। सो ऐसा नहीं है नाउ कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही देखना है। कोर्स प्राइस, नाउ दैट इज़ योर कंसर्न, आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज मिनिमल एज पॉसिबल, बिल्कुल अफोर्डेबल, बिकॉज देखो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, प्लेटफॉर्म का चार्जेस जाते हैं। इन माई हैंड पर्सनली इट्स वेरी वेरी लिमिटेड ऑफ दिस अमाउंट दैट कम्स, बट to consider about you also, the basic course price is 1959, which is like less than 2000, so I hope you will understand कि अब इससे कम it's not possible, including taxes and charges it comes down to 2373। this is the breakup, कोर्स ब्रेकअप, ठीक है। कोर्स प्राइस है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, GST है एंड प्लेटफॉर्म फी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ में आती हैं, वी कैन नॉट हेल्प इट, एज अ यूज़र हमें करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्राइस, दिस इज़ द टोटल प्राइस, ओके। ऑल्सो कमिंग टू द डिस्काउंट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज न्यू ईयर के टाइम पे हम ये लॉन्च कर रहे हैं, सो 10% ऑफ वैसे भी सारे कोर्सेज पे आपको मिलेगा। सो दिस इज़ वैलिड फ्रॉम 30th of December टिल January 2nd, सो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। वॉट इज़ ऑल्सो स्पेशल अबाउट दिस इज़ दैट वन स्टूडेंट कैन यूज़ दिस कोड ऑन एनी 2 different कोर्सेज। यूजली आप कोड यूज़ करके सिर्फ एक ही कोर्स परचेज कर सकते हो, बट हियर आई एम गिविंग दिस ऑफर फॉर
2 कोर्सेज ऑफ योर चॉइस ऑन अंजन कलश IAS. तो आप इसको मॉडर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी और सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो. सो इन टोटल यू गेट a 20% ऑफ. What is the course code? It is HNY 2025. Happy New Year 2025. Okay, so HNY. So just make sure that you do it well within the time. And I told you that I'm going to give you a solution for somebody. I'll just take 2 minutes of yours now, who is a complete beginner, who has not covered ancient medieval history. तो ना मैंने YouTube पे, I'll attach the link of this playlist also in the description. The channel name is Exploring Life with Arpita Prakash. वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ UPSC CSE सिलेबस सब्जेक्ट्स करके, ठीक है. वहाँ पे 3 वीडियोज़ आर एडेड एज यू कैन सी. सो ड्यूरेशन भी आपको दिख रहा है, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न. सो यू नो दीज आर काइंड ऑफ द जिस्ट, द स्टोरी लेन. इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ टेलीग्राम पे एंड ऑल्सो ऑन द अंजन कलश IAS ऐप. इट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल फॉर ऑल ऑफ यू. बट अगर आपको वीडियोज़ देखने, आप आराम से एक एक दिन एक एक भी देखोगे तो पूरी एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न की पूरी हिस्ट्री को मैंने समराइज कर दिया इन द स्टोरी फॉर्मेट, सो दैट समबडी हु हैज़ नॉट डन द डिटेल एटलीस्ट नो द स्टोरी एंड द क्रोनोलॉजी. ठीक है, फिर इसको तो हम डिटेल में कर ही रहे हैं. इसके कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज़ कम्प्लीटेड ऑल्सो. So you have now the whole history cover, the whole Indian history coverage on Anjan Kalash IAS app. Okay, so I think here we are, and we are good to go with this the course now. Please remember, the discount would be valid only till January 2nd, and we start the course also from January 2nd. So हम आराम से अपने कोर्स को अब शुरू करेंगे. एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द लेक्चर्स. एंड जैसे जैसे आप देखोगे, प्लीज़ शेयर द फीडबैक ऑल्सो. सो टेक केयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ. हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. सो मेरी सबसे बड़ी प्रेयर आपके हेल्थ के लिए ही है. बाकी सारी चीज़ें अलाइन होती चली जाएंगी. सो सी यू. टेक केयर टिल देन. बाय बाय.